Hello guys, today we are going to study human female reproductive system and you can watch it with structure and function, and if you go through the text of the book and if you follow our guidelines, you are going to be crowned with great success in coming days. And listen, uh, with this concept you can crack both the exams, subjective plus 2 board exam, 10 plus 2, that is 12th board exam, and objective NEET UG test. Okay, so human female reproductive system. First, you should note down that its location is pelvic region in female. Pelvic region, lower abdominal region, and the structure you can see the human female reproductive system. It includes some organs like first one, ovary. Ovary are ovaries, plural ovaries. Number is 2, 2 in number, and this is the female gonad, means principal sex organ. This is meant for producing gametes, that is ova, and hormones, that is steroidal hormones written in the book. Steroidal hormones, that is estrogen and progesterone. But it also secretes relaxin, a protein hormone, in the later phase of pregnancy. So you must note down, right? This is the female gonad. Second one, oviduct. Oviduct, plural is oviducts, also called fallopian tubes. Two in number, and this makes the duct part, female reproductive duct, accessory duct. Then comes uterus. Uterus is also called womb or called hystera. These are the names you must note down. This is single. It also makes the duct part, accessory duct. Then comes, after uterus comes cervix, just lower to the uterus, just below the uterus is cervix. This is one, single. Then vagina. This is also one, single. So all these unite together to form accessory ducts. Accessory ducts. Oviduct, uterus, cervix, and vagina. Now, glands associated with this system. Bartholin's gland. Bartholin's glands. 2 in number. 2 in number. That is for lubrication of vagina. So, it is comparable to vulvourethral glands or Cowper's glands of males. Bartholin's glands. And next one, mammary glands. Mammary glands are also accessory reproductive glands in females. 2 in number. As you know, mammary glands are found in both males and females of mammals, but functional in females. And mammary glands are located in both
thoracic and abdominal regions of female mammals. So, a functional mammary gland is the characteristic of mammalian female, and it is found in thoracic region in human females, and it causes production of milk. So, milk gland, it is a ductile structure, it secretes milk, it produces milk under the influence of prolactin from anterior lobe of pituitary, and it ejects milk after childbirth under the influence of oxytocin that has been synthesized in hypothalamus and released by posterior pituitary, that is neurohypophysis. So milk production by prolactin and milk ejection by oxytocin. So we can say that milk production and ejection is the combined influence, synergistic influence of estrogen, prolactin, progesterone and oxytocin. Because prolactin is also released in our body, male. But without estrogen, no role of prolactin, milk production. Without progesterone, no role of oxytocin in human females. So it is a combined action. Milk production and ejection is the combined action of estrogen, prolactin, progesterone and oxytocin. And despite all these are the accessory glands. These are the accessory glands, reproductive glands in females. Despite all these, external genitalia are also found. External genitalia includes कौन सा? Mons pubis. Mons pubis is the fatty elevation. Just below is pubic hair, not allowing the germs to enter. Pubic hair. After pubic hair, clitoris is the erectile part. This can be compared to the shaft of the male's penis, clitoris, erectile tissues. After clitoris, we can see urethra and vagina, urethral opening and vaginal opening, and then vaginal opening is covered with labia minora, the small fleshy muscular folds. Then larger fleshy muscular folds, labia majora, acts as protective part for this delicate organ. And then hymen can be seen. This hymen is a perforated structure. It is found in virgin girls. It is generally believed, but it can be torn during playing activities, during cycling. So the presence of hymen is not the real indicator of virginity in females. So hymen should be there. So all these unite together to form external genitalia in female. External genitalia. These have got supporting role in females. Next. Now guys, we have to study structure and function of different parts of human female reproductive system. Okay. We can draw a very simple diagram just to develop the real concept. What happens actually there? First of all, this part, ovary. Ovary is the female gonad, principal sex organ, and that is known for two major functions. First function is oogenesis, that is production of ovum.
But this production of ovum begins since the birth, when the fetus is 6 months old in the mother's uterus. So it occurs in fetal ovary, and several times it is abundant at the time of birth, at prophase 1, at puberty, metaphase 2. Then a single functional ooted or ovum is formed. So it is a very complicated process. Ovary, you see, this is the ovary. This is the ovary. Here you can see epithelium, and it forms stroma. The stroma is divisible into outer cortex, this is cortex part, and the middle part is called medulla. Inner part is called medulla, not middle. The outer part is cortex, inner part is medulla. Now inside ovary you can see, in each ovary about couple of millions of oogonia are formed, ovum mother cells. 2 million ovum mother cells are formed. And in oogonia you can see, after birth no oogonia are formed and added. Then you can see from oogonia, ये आप कह सकते हैं पहले की ओवेरियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर, उसके अंदर ओगोनिया. अब ओवेरियन फॉलिकल्स प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे, टर्शियरी होंगे, और उसके अंदर प्राइमरी oocyte ऐसे होगा. लेकिन जब ये प्राइमरी फॉलिकल होंगे तो सिर्फ थोड़ा ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे. सेकेंडरी में ये थोड़ा सा देखेंगे आप कि यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स ज्यादा होंगे, फिर थीका होंगे, और यहां तो पूरी तरह से ये एंट्रम बन जाएंगे. एंट्रम मतलब कैविटी. अब ये प्राइमरी oocyte अंदर डेवलप कर रहा है, और ऊपर में कौन है, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल. ये प्राइमरी oocyte अंदर में है. धीरे धीरे सेकेंडरी oocyte में बदलेंगे, यहीं से सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा, यही ओवुलेशन कहलाएगा. तो आपसे कोई पूछे ओवुलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा is called oogenesis, which begins in fetal ovary, and release of ovum. Actually it is not an ovum, it is in the form of secondary oocyte. This is called ovulation in the middle of the menstrual cycle. तो यहां से ओवरी से ये ओवम निकला सेकेंडरी oocyte के रूप में. अब इसको पकड़ेगा कौन, यहां पर देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये फिम्बरी है, और इसमें एक पॉइंट बना हुआ ओस्टियम. तो आपसे कोई पूछे कि ओवम इज फर्स्ट रिलीज्ड इन बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी मींस एब्डोमिनल कैविटी, और उस कैविटी में ये पहले फ्लोट कर रहा है. नाउ दैट इज ट्रैप्ड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये फिम्बरी, ये, और इससे ओस्टियम से एक पकड़ा गया और इसको अंदर लाया गया. अब ये पार्ट है इनफंडिबुलम. अब ये पार्ट है थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, इसलिए एम्पुला कहते हैं. एम्पुला मतलब स्वॉलन रीजन, और उसके बाद का ये स्थमस होता है. तो यहां पर सीलिया है बहुत सारे, अभी धीरे धीरे जाएंगे. इसी समय माना जाता है कि यदि ओपन सेक्स हुआ, ओपन क्वाइटस हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, कॉपुलेशन हुआ, तो यहां पर से सेमिनल फ्लूइड आ गए और ये स्पर्म स्मूथ करते हुए यहां आएंगे. तो a large number of sperms enter, but only one gets opportunity to fuse with the ovum. अब यही इधर से जो एक स्पर्म आए और इधर से एक ओवम मिल करके ये बना दिए जाइगोट. अब ये जाइगोट यहाँ से धीरे धीरे क्लीवेज के द्वारा 1 सेल से 2 सेल, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, मोरुला होते, ब्लास्टुला होते, यहाँ पर जाके फिक्स हो सकता है. मतलब ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है एम्पुला. इस सब को मिला करके हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं. तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है. तो ये मूवमेंट इस तरह से ऐसे होता जाता है.
और यहाँ से ये इन्फंडिबुलम एम्पुला इस्थमस होते हुए यहाँ पर ये देखिए यूटेराइन फंडस है, ये यूटेराइन कैविटी है। यूटेरस में जा करके ये फिक्स हो सकता है और इस तरह से आपने देखा कि मेल और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट स्पर्म, फीमेल गैमिट ओवम, ये मिल करके जाइगोट बना करके धीरे 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 क्लीवेज होते हुए मोरुला ब्लास्टुला होते हुए यहाँ करके फिक्स हो गए। इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिक्सेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। बट यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ओवम धीरे 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 यहाँ से आएंगे और एंडोमेट्रियम को लेकर के, जो इनर पार्ट ऑफ यूटेरस है, ये यूटेरस है, ये यूटेरस का हिस्सा है, वर्म और हिस्टेरा। इस यूटेरस से यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो है, एग जो है, वो एंडोमेट्रियम के साथ, ये आर्टेरियल ब्लड के साथ ये बाहर आ जाएंगे हर मंथ 28 to 29 डेज। लूनार मंथ कहते हैं इसको, दैट इज ओवरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो ब्लड रिलीज होता है ये आर्टेरियल ब्लड है और इसकी मात्रा जो है वो डिफर कर सकती है अलग अलग कंडीशंस में। और इसके साथ ये सिंगल ओवम और एंडोमेट्रियम और ये एंडोमेट्रियम वॉल प्लस ये आर्टेरियल ब्लड रिलीज होते हैं 1 to 5 डेज तक। काफी पेनफुल हो सकते हैं ये, लेकिन मात्रा ब्लड की, कभी कभी देखिए अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो डिफर करता है, ज़्यादा या कम, ये डिपेंड करता है कोई डिजीज है, मेडिकेशन है, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम क्या है, ये बहुत सारी बातें होती, कोई फिक्स्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि आखिर यूटेरस की जो वॉल है, ये वॉल, यही यूटेरस मेन पार्ट है। ओवरी तो मेन पार्ट है ही, यूटेरस उसके बाद सेकंड मेन पार्ट है, क्योंकि यूटेरस को ही वम्ब कहते हैं और इसी को हिस्टेरा कहते हैं। इसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्प्लांटेशन होता है, प्रेगनेंसी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके वॉल 3 भाग में देखे जा सकते हैं। बाहरी को कहते हैं, आउटर पार्ट को कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, और जो इनर पार्ट होता है यह आउटर लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, और ये थिन और मेम्ब्रेनस होता है, थिन और मेम्ब्रेनस होता है। आप समझ लीजिए, लिखने की बात बाद में। और उसके बाद मायोमेट्रियम होता है, मेसोमेट्रियम नहीं होता है। मायोमेट्रियम मिडिल होता है, मिडिल लेयर, और यह थिक होता है और मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब स्मूथ मसल्स होते हैं इसमें, ये जानकारी की बात है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी में ये शेप और साइज बढ़ता है तो ये काफी ज्यादा, कई टाइम्स बढ़ जाते हैं। सो वेरी डिफिकल्ट कंडीशन। और मायोमेट्रियम जो है यही कॉन्ट्रैक्शन करता है प्रेगनेंसी के दरमियान, जो डिलीवरी ऑफ द बेबी में मदद कर देता है। लेकिन एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम जो है वो इनर पार्ट है, इनर लेयर है, और यह ग्लैंडुलर है, यह ग्लैंडुलर है। एंडोमेट्रियम यह ग्लैंडुलर पार्ट है। उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। यह सर्विक्स का जो कैनाल है और नीचे वेजाइना है, और वेजाइना का कैनाल, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल, यह मिल करके बर्थ कैनाल बनाते हैं। तो वेजाइना एक तरह से कोपुलेटरी कैनाल भी है और सर्विक्स के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल भी बनाता है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस वेजाइना के बाहर बहुत सारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अब समझा जाता है कि भाई ये पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यह मान लिया गया, लेकिन ये इतना डेलिकेट है इसीलिए इसमें कुछ हेयरी और मस्कुलर पार्ट्स अलग से दिए गए हैं ताकि इसका प्रोटेक्शन रहे। और इसका लोकेशन पेल्विक रीजन में इस तरह से है ताकि इस डेलिकेट पार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, हाइजीन भी मिलता रहे और साथ में प्रोटेक्शन भी मिलता रहे। अब देखिए एक्सटर्नल जेनेटिलिया कैसे इसको प्रोटेक्ट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। Now we are talking about external genitalia of human female.
सबसे ऊपर ये देखिए, यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस है, ये फैटी एलिवेशन है, ये प्यूबिक रीजन में है। मॉन्स प्यूबिस ये एक्सटर्नल स्ट्रोक से इसको बचाता है, क्योंकि पूरे डेलिकेट ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है। और यहाँ पर धीरे 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 एट द टाइम ऑफ पुबर्टी ये प्यूबिक हेयर आते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं जर्म्स को यहाँ आने से। कभी कभी ये 3 to 5 ईयर्स में भी आ जाते हैं, इसको प्रिकोशियस पुबर्टी कहते हैं। लेकिन नॉर्मली ये 8 to 9 ईयर्स के बाद ही आते हैं पुबर्टी पे। सेक्सुअल मैच्योरिटी जैसे जैसे होती है 9, 10, 11, 12, इस तरह से 13 ईयर्स ऑफ एज प्यूबिक हेयर। यहाँ पर एक और रचना होती है, ये इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, ये क्लाइटोरिस, ये कह सकते हैं कि कंपेरेबल टू ग्लैंस पेनिस ऑफ मेल, ये इरेक्टाइल टिश्यूज हैं। ठीक उसके नीचे यहाँ पर मेल की तरह कॉमन यूरोजेनाइटल डक्ट नहीं होते, फीमेल में यहाँ पर होते हैं, ये है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, इससे यूरिन आएंगे, ये ऊपर में है। जस्ट उसके नीचे यहाँ पर है ये वेजाइनल ओपनिंग, इससे मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा यंग ह्यूमन फीमेल्स में, वेजाइनल ओपनिंग। तो यूरिन के लिए अलग यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग अलग से, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। यही कोपुलेटरी पार्ट भी है फीमेल में, वेजाइनल ओपनिंग। अब इसमें यहाँ पर यदि इसको बड़ा करके देखा जाए तो इसमें इस तरह से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हाइमेन। ये हाइमेन एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। It is widely believed in our society that the presence of hymen is the indicator of virginity of female. That means the female has not undergone any sexual intercourse earlier. But it may be torn or it may rupture during any sports events. So the proof of virginity is just, you can say, it is not confirmed here. It may be torn during sports events or during jump or jolt, or you can say. So hymen is present there, just यहाँ से नीचे fourchette and then perineum. This is surrounded with a small fold, a small muscular fold, and this is called labia minora. Labia minora. And just outside this labia minora is another bigger muscular fold, large fold, and that is called labia majora. So you can see mons pubis 1, then clitoris, and then hymen, then labia minora, and then labia majora. All these are external genitalia in human female, just to support and protect all the internal delicate, soft and vital organs. Okay, now about glands. Now we should talk about mammary glands. You know, this is modified sweat gland, may have sebaceous glands also, but overall modified sweat gland. Sweat gland and sebaceous gland, you know, these are the glands present in our skin, human skin or mammalian skin. So this is the breast region.
This is the breast region, and you can find ribs are there. Ribs, cut ribs you can see, and between the ribs you can find muscles. Muscles you can find. Muscles. Muscles you can find, and the one muscle is pectoralis. Pectoralis muscle. Pectoralis muscle. By using pectoralis muscles, birds can fly in the sky. Pectoralis major and pectoralis minor, then accessory, then tensor. These are supporting. And a mammary gland is found in both male and female of mammals. Found in both male and female of mammals. Found in both thoracic and abdominal regions in mammalian females. But in females, found in both males and females of mammals, but in females it remains functional. So a functional mammary gland is the characteristic feature of all mammalian females, and found in thoracic and abdominal regions, both in mammalian body, but in human females it is found in thoracic region. So mammary gland in human female, it is always going to be functional and thoracic. Functional and thoracic. Location wise thoracic and functional in nature. Functional means production of milk with the help of estrogen and prolactin. Prolactin is a hormone secreted from anterior lobe pituitary. Milk ejection means release after childbirth. That is release, ejection after childbirth, after parturition. So progesterone, with the help of progesterone and oxytocin. So it is a combined effect. It is a synergistic effect. Estrogen plus prolactin for milk production. Progesterone plus oxytocin. Oxytocin synthesized in hypothalamus, released by posterior pituitary or neurohypophysis. Okay, both are different things. In mammary gland you can find variable amount of fats. This is for providing different shape and size. Variable amount of fats. And then glandular tissues are there. Glandular tissues. Glandular tissues होंगे यहाँ से आगे. इसके अंदर glandular tissues होंगे. And glandular tissues के अंतर्गत बहुत सारे आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स. जैसे सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यूज में क्या होगा? ग्लैंडुलर मतलब सिक्रेटरी. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा यहाँ पर मैमरी लोब. बहुत सारे लोब होंगे, इसको लिख लीजिए यहाँ पर. सबसे पहले मैमरी लोब्स, लार्जर लोब्स विल बी देयर, 15 to 20. फिर लोब्स के बाद छोटे छोटे अल्वियोली बनेंगे. अल्वियोली बनेंगे. अल्वियोली सेकंड नंबर आप लिख सकते हैं मैमरी अल्वियोली. एक अल्वियोली हम लोग जानते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. यहाँ अल्वियोली के जो सेल्स होंगे यहाँ पर इस सेल्स से मिल्क का सिक्रीशन होगा. ये जो सेल्स होंगे, सेल्स इसके सेल्स सिक्रीट करेंगे मिल्क. किसके? अल्वियोली के सेल्स, अल्वियोलर सेल्स. मेमोरी ग्लैंड के अल्वियोली के अंदर जो सेल्स होंगे वो सिक्रीट करेंगे मिल्क. तो फिर हम पूछेंगे सर जमा कहाँ होगा? जमा होगा ना, जमा होगा इसके अंदर जो ल्यूमेन है. ये ल्यूमेन मतलब इसकी जो कैविटी है, ये जो ल्यूमेन है, जो कैविटीज है उसमें ये स्टोर होंगे, बनाएंगे सेल्स और जमा होंगे कहाँ? ल्यूमेन में. ल्यूमेन मतलब इंटरनल डायमीटर, कैविटी. ल्यूमेन्स में, कैविटीज में ये स्टोर होंगे.
ये क्वेश्चन आते हैं। बनाएगा कौन? अल्वियोलर सेल्स मिल्क सिक्रीशन कराएगा, और ल्यूमेन और कैविटीज में स्टोर होंगे मिल्क। तो फिर ये रिलीज कैसे होगा? जैसे ही नियोनेट न्यूबॉर्न बेबीज को सक करेगा, ये यहाँ से चालू हो जाएगा, और फिर अपने बंद होने के लिए इनके पास अपना खुद का फंक्शन है, इनहिबिटरी पेप्टाइड ऑटो स्टॉपेज करेंगे ताकि कंजर्वेशन ऑफ मिल्क हो। और मदर्स मिल्क में सब कुछ होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, मदर सब कुछ दे देती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज पैसिव इम्यूनिटी शो करती है ताकि वो रेडी टू फाइट हो उसके लिए। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं, जैसे हम ए का नाम देते हैं IgA, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स में कमी होगी किसकी? विटामिन सी नहीं दिया जाता, इसलिए ओरल ड्रॉप्स अलग से, आयरन सॉल्ट्स अलग से, यही 2 चीज मदर नहीं दे पाती है। और ये मदर केयर इज द बेस्ट नेचर केयर, और इसीलिए हम सब पले बढ़े आगे बढ़े। तो अब यहां पर से ये धीरे धीरे ये अल्वियोली अब क्या होंगे? एक डक्ट के जरिए आगे आएंगे। बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, ऐसे डक्ट्स के जरिए आगे आएंगे, ये बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, इन डक्ट्स के जरिए आएंगे। तो अब हम इसका तीसरा नाम लिख लेंगे यहां पर, नंबर 3 कौन सा? मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स, मेमोरी डक्ट्स। उसके बाद ये धीरे 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 अब ये थोड़ा सोलिन स्ट्रक्चर में ऐसे आएंगे, थोड़ा सा ये फूला हुआ, फूली हुई रचना यहाँ पर, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, यहां से आएंगे। अब इनका नाम हम रखेंगे नंबर 4 में, क्या रखेंगे? मेमोरी एम्पुली। एम्पुली इसको बोलेंगे, एम्पुला। एम्पुला जहां भी होगा सोलिन रीजन, सोइलिंग के साथ। अब यहां पर बहुत सारे डक्ट्स आ जाएंगे, ये बहुत सारे डक्ट्स, फाइन, थिन, फाइन, न्यूमरस डक्ट्स आकर के यहां पर खुलेंगे, छोटे छोटे पोर्स के जरिए, छोटे छोटे पोर्स के जरिए। अब इसको हम कहेंगे लैक्टिफेरस डक्ट्स, इसको कहेंगे लैक्टिफेरस डक्ट्स, लैक्टिफेरस डक्ट्स बोलेंगे। यहां से ये जो भाग बनाएंगे उस भाग को हम कहेंगे निप्पल, ये पार्ट होता है निप्पल, यही निप्पल है। अब इसका कलर इनिशियली पिंक होता है यंग गर्ल में, धीरे धीरे वो पिंक से रेड, फिर रेड से ब्राउन, फिर ब्लैक, धीरे धीरे ये होता जाता है, ये कलर चेंज हो सकता है। एरियोला इसको कह दीजिए, ये। तो यहां से ये एज मिल्क इज सक्ड बाय द नियोनेट, द मिल्क इज ejected and it has got an autocrine function with inhibitory peptide to conserve the milk। और इनिशियली इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो चाइल्ड बर्थ के बाद, पार्च्यूएशन के बाद मदर मिल्क रिलीज होता है उसको कहते हैं लैक्टेशन। और इनिशियल लैक्टेशन जो होता है शुरुआती दिनों में, जो फ्यू डेज होते हैं, उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। उस कोलोस्ट्रम में वही बात जो हमने कही, रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं मेनली, जैसे IgA, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे हमने कहा विटामिन सी और आयरन सॉल्ट्स पोर होते हैं, इसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इनिशियल लैक्टेशन जो होते हैं फ्यू डेज, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर क्या विचार है, डॉक्टर्स का, जानकार का विचार है कि 6 to 12 मंथ्स तक यदि मिल्क दिया जाए बेबी को, बेस्ट फूड कह सकते हैं। वो नॉरिशिंग भी है, प्रोटेक्टिव भी है, सब कुछ है, और उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। तो इस तरह से मेमोरी ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों में होते हैं मैमल्स के, बट फंक्शनल होते हैं फीमेल्स में। और मैमलियन फीमेल्स में थोरेसिक और एब्डोमिनल दोनों होते हैं, पर ह्यूमन फीमेल्स में ये थोरेसिक होते हैं। तो फीमेल्स में ये फंक्शनल होने चाहिए और ह्यूमन फीमेल्स में फंक्शनल और थोरेसिक होने चाहिए। तो हम कैसे याद रखेंगे? एल पहले लोब्स हैं, एल, फिर उसके बाद अल्वियोली हैं, ए, फिर उसके बाद डक्ट्स हैं, फिर उसके बाद एम्पुली हैं, फिर उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, लडाल, ऐसे याद रखेंगे। ये लोब, अल्वियोली, डक्ट, एम्पुली और लैक्टिफेरस डक्ट्स, ये मिल करके ग्लैंडुलर टिश्यूज बनाते हैं।
ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स हैं। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स इसमें होते हैं। ये ब्रेस्ट रीजन में, थोरेसिक रीजन में होते हैं और ये 2 इन नंबर होते हैं। ओके, सो I hope that you will find it beneficial. Go through the text, try to collect some main points and develop real concept, subject matter, and you can crack both the exam simultaneously, 12th board subjective and NEET objective. So try your level best and try your level best to like, share and subscribe my channel. Good luck. God bless you.